9.3 exercise question 9.3 up to the question 11 we have completed. Now see question 12. What is question 12? The sum of open your book also. So see book 9.3 question 12. There are very simple questions related to geometric progression. Okay, so here sum of first three terms of GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. Okay, so you are watching ना question. Hello, question देख रहे हो? Yes sir. If we want to take three terms for AP and also for GP, so there are a very easy technique. Just like see, suppose we are given some condition between three terms, two terms. In that case, we can use for geometric progression just like this. In general, we are writing terms of GP just like what? AR, AR square, AR cube and so on. Yes, na? Hello? Yes sir. First term AR, AR square, AR cube. This is our general term of a GP. For three terms, see here, ये जो तीन टर्म है ना, इस तीन टर्म को लेकर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा. और इन जनरली फॉर टेकिंग थ्री टर्म्स we are taking like this: A by R and AR. This is also in GP. Okay, ये अगर थ्री टर्म्स ऐसा लिया जाए, फर्स्ट टर्म इज A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ये A1, A2, A3. A1 को हमने ये लिखा, A1 को क्या लिखा? A by R. A2 को क्या लिखा? सेकेंड टर्म A. थर्ड टर्म को क्या लिखा? AR. A divided by A by R, we get R. AR divided by A, we get R. That is, these three terms are in geometric progression. तो थ्री टर्म्स लेने के लिए ऐसा टर्म लेने से क्या, एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट दिया है और सम दिया है, तो इससे इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर ना? थ्री टर्म्स में ऐसे लिखते हैं. अगर फाइव टर्म्स लिखना है, सो फाइव टर्म्स, so we can write like this: AR square, AR. This is first term. Suppose this is first term, second, third, fourth, fifth. This is also GP. ये geometric progression में है कि नहीं? देखो five terms are there. First term, second term, third term, fourth term, fifth term. A by R divided by A by R square. We get what? This by this R, this by this R, this by this R, this by this R. Their ratio are same. That is, this is in geometric progression. So sometimes when we are given sum of three terms, product of three terms, and sum of five terms, product of five terms, so we can use this. Because देखो इस सबका प्रोडक्ट करने से क्या होगा? R सब कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा. We can find the value of A. Okay, so in this way we can take terms of a GP, either three terms or five terms. Okay, so here in these questions, what is given? Question 12, what is given? Sum of first three terms. What is the value of three terms? Sum of three terms? Hello? 39/10. 39/10. And product is what? 1. We have to find the value of common ratio and terms. R फाइंड करना है और टर्म्स फाइंड करना है, थ्री टर्म्स. ओके, सो हियर लेट A by R, AR be three terms. Be three terms. Then, according to question,
a by r plus a r equals to what? 39 by 10. And product is also a by r into ar is equals to 1. This is given. Yes ना? So clearly दिख रहा है ना? हेलो, clearly दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके ना? सो 3 टर्म्स जब लेना है ना तो फिर क्या करना है? 3 टर्म्स लिया तो एडिंग सम ऑफ 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, सो यू कैन टेक जीपी एज ए लाइक दिस. दिस इज आल्सो जीपी. कॉमन रेशियो इज आर. फर्स्ट टर्म इज व्हाट? दिस. सेकंड टर्म दिस. थर्ड टर्म दिस. बिकॉज दिस इज जीपी, सो वी कैन राइट टर्म्स ऑफ द जीपी एंड आल्सो वी कैन फाइंड रेशियो, कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो फाइंड करना है और टर्म्स फाइंड करना है. टर्म्स मतलब क्या है? इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज जीपी. एंड कॉमन रेशियो आर. सो एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग. नाउ हियर यू कैन सी दैट इन फ्रॉम इक्वेशन 2 r cancel, a q equal to 1. From 2 we get 2. From 2 we get what? a q equals to 1. Now you can solve it ना. a q equals to 1 अगर है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? a q minus 1, a q equals to 1, क्यूब रूट ऑफ 1. दो इमेजिनरी होता है और एक रियल होता है. So a q equal to 1, we have to find the value of a. a की वैल्यू निकालना है. So a की वैल्यू क्या आना है? यहां से रियल वैल्यू लेना है. Just we will consider only real value. So a q equals to 1. तो 1 किधर ले आया? a q equals to -1 equals to 0. Now we can solve a q minus 1 q, a q minus b q, a minus 1 into something equal to 0. यहाँ का जो फैक्टर होता है ये देखो, a q minus b q, you can write it. कैसा फॉर्मूला क्या होता है a q minus b q का फॉर्मूला? Tell me. Hello. a q minus b q equals to what is the value? A minus b multiplied by a square plus b square plus ab. a square plus b square plus ab. ab. माइनस के केस में यहाँ पर प्लस ही होता है. जो भी हो, जस्ट लिसन. a q plus b q equals to also formula a plus b something is there. यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, इस टाइप का रहता है. सो दिस फैक्टर इज सेकेंड डिग्री फैक्टर और दिस हैविंग कॉम्प्लेक्स फैक्टर. इसकी जो वैल्यू है निकालने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है. सो ओनली रियल नंबर यू कैन गेट फ्रॉम हियर. बिकॉज क्यूबिक है, देयर विल बी 3 फैक्टर्स. ये सेकेंड डिग्री फैक्टर, देयर विल बी 2 फैक्टर्स, कंटेन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फैक्टर, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेगा. अगर इसकी वैल्यू 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा. ओके, सो हियर वी कैन गेट रियल वैल्यू फ्रॉम दिस फैक्टर ओनली. सो यहाँ पर जो फैक्टर होगा ना, a minus 1 equals to 0, दैट इज इक्वल टू 1 रियल वैल्यू. बाकी दूसरे वाले फैक्टर से जो वैल्यू आएगा वो कॉम्प्लेक्स होगा. सो यू कैन राइट सीधा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर. ओके, a इक्वल टू 1 implies a equals to 1. टेकिंग रियल रूट्स, बिकॉज वी नो उसमें ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रूट आता है. तो रियल रूट्स लिया, a की वैल्यू 1 हो गया. नाउ a इक्वल टू 1, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ r. बताओ r निकालने के लिए क्या करना है? ये जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट से a की वैल्यू 1 था, यहां से रियल रूट्स लिया तो a की वैल्यू 1. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो वैल्यू ऑफ r. सो r कैन बी फाइंड फ्रॉम वेयर? अब क्या करें? a की वैल्यू को रख देते हैं इधर. यहां से तो मिलेगा नहीं r की वैल्यू, यहां से मिलेगा. सो पुट a equals to 1 in 1, we get, यहां पर a की वैल्यू 1 रख रहे हैं. सो क्या मिलेगा? 1 upon a equal to 1 upon r plus 1 plus r equals to
39/10. 39/10. Now it can be solved and we will get quadratic equation in R. R की दो वैल्यू मिलने वाला है. So quadratic equation, so 1 plus R plus R square equals to what? 39 R. और इधर 10 आ जाएगा ना. हेलो, क्लियर है कि नहीं? 10 का इंटू इधर हुआ, इसको एलसीएम लिया तो 1 प्लस R स्क्वायर एंड नीचे का जो R है उधर चला गया 39R. सो सी हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R, 10R square 10 into R 10R, 39R इधर आएगा, 10R minus 39R क्या होना है? minus 29R and plus 10 equals to 0. So this is quadratic equation. Now you have to find the value of R. दो वैल्यू मिलेगा because quadratic equation, quadratic factor, so you can get two factors, linear factor. So किसमें होगा breaking? मिडिल टर्म splitting किसमें होगा? 10R square minus 100 बनाना है ना, 10 into 10 100. So 24 into 5 and 25 into 4. 25 into 4. So you can get factorization like this: minus 25R minus 4R plus 10 equals to 0. Right ना? ये 25 और 24 29 हो जाएगा और इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा. So okay, so from here you can get the value of R. क्या होगा वैल्यू R का बताओ? इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है? 5R कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2R minus 5. 2R minus 5. Now you can take common from here, minus 2R, minus 2 only. I think minus 2. So 2R minus 5. Correct? 2R minus 5 equals to 0. So now solving this, 2R minus 5 and 5R minus 2 is equals to 0. So R equals to 5 by 2 and 2 by 5. Okay, इसको 0 करोगे तो 5 by 2 हो जाएगा, इसको 0 करोगे तो 2 by 5. So 5 by 2 or 2 by 5. So by taking R equals to this, A equal to 1, R equal to 5 by 2. You can write the terms. Our target is what? Finding common ratio, either 5 by 2 or 2 by 5. If you can see here, if R equals to 5 by 2 and A equals to 1, then टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट टर्म R की वैल्यू 5 by 2 है, A की वैल्यू 1 है. सो फर्स्ट टर्म A by R means 2 by 5. फर्स्ट टर्म A1 divided by R, this 2 by 5 and A1 and AR, A into R product 5 by 2. So this is GP. ओके, ये टर्म्स हो जाएगा. और अगर ये दिया जाए क्या? इफ R equals to 2 by 5 and A equals to 1, then वो वैल्यू लिया जाए तो क्या होगा? A by R, that is 5 by 2. 5 by 2, 1, 2 by 5. So this is GP. So these are the terms for GP. इसमें क्या हो रहा है कि sum of 3 terms 39 by 10. Product of 3 terms is 1. Then we are finding first term means A, value of A and R. Then we can write the terms. अगर इसको लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, इसको लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है. क्लियर है? हेलो,
समीर, किरांश, हेलो, यस सर। देख रहे हो कि नहीं? हेलो, रिप्लाई मी। यस सर। अंश तो एक्टिव है। आदित्य, आदित्य, यस सर। ओके। एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना अभी? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया अभी? हेलो, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3. There is a very important concept. What is the concept? If we are taking three terms of GP, then we can write like this term. Because whenever we are given addition of or sum of three terms, product of three terms, then we can find the value of terms of the GP. Common ratio आ जाएगा, term भी आ जाएगा. If we can take like this term, then product will give direct the value of A. So this is the special concept. Okay. And now see question 13. इससे रिलेटेड ना पहले मैं ये वीडियो बनाया था, वो भी भेजूंगा उसको, जो एक बार देखना जरूर और उसको सॉल्व, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि सॉल्यूशन वैसे अवेलेबल रहता है, बट यू कैन वॉच एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, आई थिंक. ओके, क्योंकि उसमें भी एक्सप्लेन करता हूं ना. नाउ क्वेश्चन 13. सी क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? 13 तो सिंपल है शायद, वेरी सिंपल. 13 व्हाट वी हैव टू फाइंड? टेल मी. कोई ना कोई रीड करो, बताओ 13 में क्या करना है. हेलो सर, एंड फाइंड. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ number of terms. How many terms are required to give the sum 120 na? So there we are given a GP, given GP as what? 3 square, 3 cube and so on. We have to find what? Number of terms, that is value of n, so that Sn equals to 120. राइट ना? जो लिखा हुआ सही है ना? हेलो, करेक्ट ना? यस सर. Just you have to write like in this way. Okay, we are given GP like this. We have to find number of terms, that is value of n, so that Sn equals to 120. Sum of that terms 120. Now here we know the formula of Sn. क्या होता है? A 1 minus r to the power n by 1 minus r. Correct? Just use this formula here. A equals to what? R equals to what? Tell me. क्या होगा? A equals to 3, R also 3. Okay, यहाँ दिया है, दिख रहा है ना? 3 और ये दोनों 3 है. Now you can put the value A equal to 3. यहाँ A equal to 3 रखना है, ये sum Sn. A equal to 3, 1 minus 3 power n. R also 3 ना? Upon 1 minus 3 equals to 120. So see क्या वैल्यू आ रहा है यहाँ पर? 2 हो जा रहा है ये. 3 by 2, 120, 240. So 3, 1 minus 3 to the power n equals to minus 240 ना? यही हो रहा है ना? So माइनस है, इसको प्लस करने के लिए ना ऐसा कर लेते हैं क्या? 3 to the power n minus 1 equals to 240 by 3 equals to 80. यही है ना? 3, इसको 3 पावर n पहले रख दिया, 1 को बाद में कर दिया तो माइनस प्लस हो गया. ओके, सो 3 से डिवाइड भी किया, 180 आ गया, तो 1 उधर ले जाओ, 81 हो जाएगा. सो इंप्लाइज 3 पावर n इक्वल्स टू 81 and 81 इक्वल्स टू 3 पावर व्हाट? 4. सो n इक्वल्स टू 3.
4. So very simple question. Okay. So ये concept यही था कि ये this GP is given, you can find A and R, and suppose sum of nth term is 120, then n is the required value. So n equals to 4. 14th question. Sum of first three terms of GP is 16 and the sum of next three terms is 180 or 128. First three terms and then next three terms. So here 6 terms are required. So we can write in general way A, AR, AR square, ARQ and so on. 6 terms you can write. And first three terms, sum of first three terms 16 and second 120. So determine first term, common ratio and sum of nth terms. सब निकालना है, A की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू निकालना है और Sn की वैल्यू निकालना है. So here first of all क्या लेना पड़ेगा, सीरीज किस टाइप से लिखना पड़ेगा? हेलो, टेल मी एनीवन. A by R square. नो, उसको नहीं लेना है, वो दैट इज द 5 टर्म्स ना, वो तो 5 टर्म के लिए होता है. या ओनली सम दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया है ना. सो 14 लेट इन जनरल वे लेना है, जनरल वे. ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5 एंड सो ऑन बी द जीपी. इन जनरल वे लेना है बिकॉज यह सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी नहीं है. और फर्स्ट 3 टर्म्स एंड देन नेक्स्ट 3 टर्म्स. फर्स्ट 3 टर्म्स ये हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गया. सो लेट दिस be the GP. Then according to question, क्या होगा? पहला फर्स्ट 3 टर्म का सम क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो गया और फिर ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गया. सो ए आर क्यू प्लस ए आर 4 प्लस ए आर 5 इक्वल्स टू व्हाट? 128. These are given. Now we have to find the value of A and R first and then Sn. Okay. So कैसे आएगा वैल्यू बताओ? फर्स्ट टर्म A है ना. So anyone? How can we get the value of? Very simple. एकदम इजी है. कैसे करना पड़ेगा बताओ? समीर, हेलो. 4 लोग ज्वाइन करके रखे हो अभी. पहले शिवानी ज्वाइन की थी, अभी नहीं है. खेरांश, समीर, बताओ क्या करना है? खेरांश, अंश, आदित्य. सर आर क्यूब को कॉमन ले सकते हैं क्या? सेकंड इक्वेशन नीचे यहां से ए आर क्यूब कॉमन ले लो और यहां से ए कॉमन ले लो, तो अंदर दोनों में सेम बचेगा ना. देखो यहां पर ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर. यहां पर ए आर क्यूब कॉमन ले लो, मिनिमम वैल्यू है. सो ये 1 यहाँ 1 रहेगा, यहाँ आर रहेगा, यहाँ आर स्क्वायर रहेगा. दोनों में सेम क्वांटिटी, डिवाइड कर देना. क्लियर ना? सो डिवाइड 2 by 1. डिवाइड 2 by 1 वी गेट. क्या होगा डिवाइड करने से? ए आर क्यू कॉमन ले लिया. ये जो है 2 by 1, 2 मतलब पहले इसको लिखा हूं, इसको इसमें से ए आर क्यू को कॉमन लेके लिखा हूं. करेक्ट. नीचे जाएगा ये, इसमें ए को कॉमन लेके लिखो. इक्वल्स टू 128/16. नाउ सी हियर क्या होगा? आर क्यू की वैल्यू में ए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. आर क्यू इक्वल्स टू, यहां पर कैंसिलेशन करना है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? 16 and 128. डिवाइड करो, क्या होगा बताओ?
128, आई थिंक 8 होगा ना, 8 से होगा ना, 88। तो वैल्यू क्या आ रहा है? हेलो, r इक्वल्स टू 3 ना, r इक्वल्स टू 3 नहीं, r equals to r इक्वल्स टू 2 ना, 2, ये 3 पावर है, r इक्वल टू 2, या पावर इक्वल है, सो बेस सेम करना है, बिकॉज ये दिस इज 3 पावर सेम है और इक्वल क्वांटिटी है, तो ये बेस को इक्वल कर सकते हो, तो r इक्वल टू व्हाट 2, सो r मिल गया, r मिल गया तो फिर यहां से ये मिल जाएगा, यहाँ r की वैल्यू रख दो, यहाँ पर r रखेंगे तो ये मिल जाएगा, सो फ्रॉम 1 we get, ये r की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर, so a plus 2a plus 4a equals to 16, so a equals to क्या हो रहा है 16/7, so this is a, this is r, तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो भी आ गया, एंड वी आर रिक्वायरिंग द वैल्यू। अब क्या वैल्यू निकालना है और बचा है बताओ? ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन रेशियो, एंड फाइनली Sn equal to a, then r equals to what? 2. So we can use the formula what? R to the power n minus 1 upon r minus 1. So a equals to 16/7, a equals to into r means 2 power n minus 1 upon 2 minus 1. क्लियर है? सो आंसर जो है क्या हो रहा है आंसर? 16/7 2 power n minus 1, बिकॉज Sn निकालना है ना, Sn ये इसमें दिया है ना सम टू n टर्म्स, तो Sn निकालने में से n के फॉर्म में लिखना है, सो 16/7 2 power n minus 1, दिस इज द सम। सो यही है, लाइन्स है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो है एंड सम, ओके। एंड 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म गिवन a equals to 729, सेवेंथ टर्म 64, डिटरमाइन S7, सम up to 7 terms we have to find. For that we require what? क्या जरूरत पड़ेगा बताओ? फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन रेशियो चाहिए, सो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए 7th term 64, फर्स्ट टर्म इज गिवन, देन वी कैन राइट कॉमन रेशियो। सो 15 में कॉमन रेशियो फाइंड करना है, ओके। सो सॉल्व करो इसको। सब लोग लाइव हो कि नहीं भाई? हेलो आदित्य, अंश, किरांश, समीर, जस्सी, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन? जीपी के लिए गिवन ए, फर्स्ट टर्म इज गिवन 729, एंड व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? क्या गिवन है और बताओ? 7th term 64, A7 64, and we have to find किसका करना है वैल्यू? हेलो, we have to find S7 का मीनिंग क्या चाहिए होगा? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू चाहिए, सो आर की वैल्यू यहां से मिलेगा, क्लियर ना? तो ये इसकी वैल्यू निकालना है। सो हियर सिंस A7 equals to 64, that is A7 means A7 equal to what? AN equal to A r to the power n minus 1. So first term A into r power
7 means 6. 7 minus 1 equals to 64. And A is given. First term is given 729. So tell me what will be the value of R? ये बिल्कुल सिंपल है. बताओ क्या वैल्यू होगा. तुम लोग पढ़ रहे हो ना अभी. हेलो, रिप्लाई करो. हेलो, क्या होगा. R power 6 equals to 64 upon A. 2/3. A means what? 64 upon A 729. Okay. तो R power 6 equals to something power 6 लिख सकते हैं ना. 6 लिखना है. 2 power 3 8 into 8 64. तो 2 power 6 64. और इसका क्या लिखना है नीचे. 6 पावर में लिखना है. 6 पावर में हो जाएगा ना. यहां भी आएगा. क्या लिखना है. 3 ना. 3 का पावर 6. 3 into 3 into 3 means 27 into 27. 729 ही होता है. सो ये पावर सेम है. तो R इक्वल्स टू क्या आ गया. 2/3. ये R की वैल्यू आ गई. सो S7. Therefore S7 equals to A R 2/3 less than 1. So we can write formula 1 minus R power n upon 1 minus R. A means 729 and 1 minus R 2/3. 2/3. 2/3. यह 7 है ना. 7 टर्म 7 power 7 upon 1 minus 2/3. This 7 power है. 7 power R 2/3 power 7. So here 1 minus 2/3 means 3 minus 2 means 1/3. 3 into 729. So 729 3 into 729. ये 3 ऊपर चला जाएगा. ये पहले एक क्वांटिटी हुआ. दूसरा क्वांटिटी लिखा हुआ ये जो है. और 1 minus 2 power 7 upon 3 power 7. We can write like this ना. इसको ऐसा लिखा. So ये 729 में से यहाँ देख के आए थे ना. 729 में 3 power 6 है. So ये 3 power 6 है और एक 3 ये है. 3 power 7 हो गया. So this is 3 power 7 into. Now taking LCM here. So 3 power 7 LCM. So 3 power 7 minus 2 power 7. So 3 power 7 cancel. So 3 power ये और ये cancel हो गया. तो 3 power 7 minus 2 power 7. This is equals to 3 power 7 means what? 3 power 7. अब इसको कैलकुलेट करो. So do it. क्या होना है. 3 power 7 means यही है. इस 3 से इसको इंटू करना है. Minus 2 power 7 means 2 power 7. I think 128 है ना. Because ये 6 पावर ये है तो इसको फिर 2 से इंटू किया तो 128 हो गया. सो ये 3 पावर 7 क्या होता है बताओ. 128 इक्वल्स टू यहाँ क्या लिखें. 3 पावर 7 एक्टिव हो ना. सॉल्व करो फटाफट. 2187 माइनस दिस इज इक्वल्स टू. अब हो गया. 3 पावर 7 2187 है माइनस 128 है. सब्सट्रैक्ट करो. 2059. So this is answer. This is sum S7. Okay ना. Hello. Right है. Yes sir. Yes. Question 16. Question 16. See, find a GP for which sum of the first two term is -4. Fifth term is 4 times the third term. GP फाइंड करने का मीनिंग ये होता है. वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म. यू हैव टू राइट फर्स्ट 3 टर्म्स. ओनली 3 टर्म्स लिखने से हो जाता है. दैट इज फर्स्ट टर्म भी निकालना है. कॉमन रेशियो भी निकालना है. देन यू कैन राइट द सीरीज ना. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस. ओके. सो हियर गिवन व्हाट. फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स. फर्स्ट 2 टर्म्स का सम गिवन है. दैट इज S2 गिवन है.
S2 sum of first two terms is given, and also fifth term is 4 times the third term. Question 16. 16. What is given? S2 equals to -4. Right ना? First sum of first two terms. तो जब भी जीपी लेते हैं पहले दो टर्म का सम मतलब S2, थ्री टर्म मतलब S3, फोर टर्म मतलब S4. So S2 equals to this is given, and also fifth term is 4 times the third term. क्या लिखूं यहां पर बताओ? फिफ्थ टर्म A5 equals to क्या लिखना है? 4 A3. This is given. These two are given, and we have to find GP. GP means पहला तीन टर्म लिख के रख देना है डॉट करके. ओके, दैट इज A फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर रिक्वायर्ड. ओके, ये बोथ आर गिवन. नाउ S2, इसमें लिखना पड़ता है एक लाइन में, पहले बताया था क्या लिखना पड़ता है. लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ GP. ओके, देन let A be first term and R be common ratio. Then clear? S2 equals to -4 implies S2 means what? A 1 minus R power 2 upon 1 minus R equals to -4. This is given. Okay, first ये given था, S2 की वैल्यू लिखा. A 1 minus R power 2, S2 1 minus R equals to -4, and fifth this is given, and also and A5 means A R power 4 equals to 4 A R power 2, right ना? क्लियर है कि नहीं? A5 means A. Yes sir. AQ3 means this. So from here you can get the value of R. क्या है R की वैल्यू बताओ? 2. R square equals to 4 implies R equals to +2 -2. +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है. क्लियर है ना? R square equal to 4 है तो रूट ओवर 4 का रूट है, सो रूट में प्लस साइन माइनस साइन बोथ कैन बी. सो ये R की वैल्यू आ गया. नाउ ये दो साइड में लिखा हूं ना, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यू कैन राइट आल्सो. अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं. फॉर R equals to 2, बिकॉज R equals to +2 भी आया, -2 भी आया. सो टेक फॉर R equals to +2 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर? फ्रॉम 1 वी गेट, ये इक्वेशन 1 है, इसमें R की वैल्यू +2 रख रहे हैं. सो A 1 minus R +2 2 power 2 upon 1 minus 2 equals to -4. So from here you can get the value of A. क्या होगा A की वैल्यू बताओ? हेलो, इसमें A की वैल्यू क्या होना है? -4.
क्लियर है? एक बार क्या है 2 लेना है +2 और इस इक्वेशन में रख के सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ जाएगा। ये क्या 4 है, ये 4 है तो -3 हो गया और ये -2 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -4 ही रहेगा उधर। तो यहाँ पर -3 था, -4/3 -4/3 ओके, इज राइट ना, -4/3 होगा ना। ये -1 है और ये -3 है तो माइनस माइनस +3, सो a इक्वल टू -4/3। सिमिलरली यहां से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे 3 हो गया, ऊपर माइनस का स्क्वायर मीन्स प्लस हो जाएगा, वो -3 हो जाएगा यहाँ पर, ये -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, a इक्वल्स टू क्या होगा, a की वैल्यू, हेलो, a की वैल्यू हेलो समीर, हिरांश, बताओ क्या होगा ये वहां a की वैल्यू, -4। यहां पर a की वैल्यू अभी भी नहीं बताया, सही नहीं बताया। पहले वाले में यहां सॉल्व किया, a की वैल्यू -4/3 आया ना, राइट ना, -4/3 होगा कि नहीं पहले, और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में 4 राइट 4 होगा ना, कैलकुलेट करना है और क्या प्लस माइनस करना है, ये सब करना है ना, इक्वल टू 4। सो एक बार क्या मिला -4/3 और एक बार ये 1 टाइम्स नॉट, सी हियर R2 है, ये -4/3 है, R -2 है, ये 4 है। Thus, for R equals to 2, A equals to -4/3, the GP, then GP is given by AR square. You can write. That is, क्या होगा बताओ, पहला वैल्यू भाई जब R2 है, ये -4/3 है, तो पहला GP क्या होगा, GP इज गिवन बाय a की जगह -4/3 लिखना है, AR दिस इंटू दिस -8/3 इंटू कर दिया दोनों को, फिर क्या करना है, AR स्क्वायर, R स्क्वायर 4 इंटू 4 -16/3, ये हो गया GP also, और एंड यू कैन राइट एंड फॉर R इक्वल्स टू -2, ये तो पहले वाले वैल्यू के लिए हुआ था, दूसरे वाला वैल्यू ये है, फॉर R इक्वल्स टू -2 एंड A इक्वल्स टू 4, द GP यहाँ the GP is given by, क्या होगा बताओ, मतलब दोनों में 4 - 8 16, पहला वैल्यू ये होता है 4, फिर AR स्क्वायर AR होता है, इन दोनों में इंटू होता है -8, फिर इसका स्क्वायर करके इसके साथ इंटू 4 इंटू 4 16, so this is the answer। ओके, R की 2 वैल्यू निकला था ना, मतलब R का 2 वैल्यू निकला था, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्ड में 2 अलग अलग वैल्यू मिला A का, सो सीरीज अलग अलग है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, सो ये सब आंसर है, राइट ना।